So once again, very, I would say, cool welcome to everybody. It's already warm and hot. And thank you so much, Pink Mind and Poonam ma'am, for this wonderful opportunity to share जो लुइस है कि फिलोसॉफी है. फिलोसॉफी बोले तो बहुत हेवी लगता है. रादर इट इज अ सिंपल एंड पावरफुल वे टू लीड आवर लाइफ इन बेटर वे. सो ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हील योर लाइफ, एंड मेनली ये हील योर लाइफ के कॉन्सेप्ट मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में कैसे रिलेवेंट है और प्रैक्टिकल है, दैट वी विल डिस्कस. आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल. Yes. Okay, good. Thank you. So you can heal के बारे में, because we'll keep it informal and interactive, because heal your life is all about our personal journey, our personal life, and how do we access to the wonderful prosperity, happiness and abundance of life. Of course it is a journey, लेकिन कुछ चीजें जो है, जो हम एक पैटर्न से लाइफ के बारे में देखते हैं, तो उसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. So how many of you have read, heard, watched any of the videos लुइस है के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा? Even if it is not, that's perfectly fine. लेकिन मुझे सिर्फ आइडिया आने के लिए, if you could share in chat box or unmute, how many of you in some way you are connected to Louise's teachings or some part of her work. If you could just write in the chat box or unmute and just say if you have read the book, if you have watched any video. So we like energy and yeah, energy create करने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे. So it's a simple thing, like you can write in chat box. We understand sometimes might be you are busy with something at the same time you are listening to us. But whenever possible, do respond. We will also, receive that energy, and we will also feel more enthused to have a talk on this topic. Absolutely. As Louis I would always say, sometimes it's very important in life just to show up. Life is offering us wonderful gifts. Only thing we need to do many times is show up. We are like, कभी-कभी हम सिकुड़ जाते हैं, हमें लगता है नहीं अभी ये right time नहीं, अभी ये मुहूर्त नहीं है. But sometimes we have to just open and share. Okay, yeah. So I don't exactly can read your name, but not her, but you are looking forward. That's a wonderful thing. That's Ashwini. Okay, yeah. Hi, Poonam. Yeah, hi Ashwini. Hi. Thank you for sharing that. So let's understand what this concept is all about. और सबसे important है कि always our mind wants कि what is in it for me. मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या benefit है. And one of my mentors always says कि our mind and parachute work similar way. They can only function if they are open. So इस लुइस है के भी कॉन्सेप्ट या फिलोसॉफी में कुछ सारी चीजें हैं जो बहुत ही रिलेवेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइफ को और एनरिच करने के लिए, और ही बेहतर बनाने के लिए. और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पाथ को, किसी कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फॉर दिस कमिंग 40-50 मिनट्स यू कैन जस्ट बी ओपन, just try to connect with those concepts, and later on you can always see to it how far it is relevant or not. Yeah, so let's move ahead. I will just share my presentation. There will not be much of technical stuff, but how it can be related to our life. Okay, so is my screen visible? There is some yeah, I will not share much about myself. I have been in this field for last 15 years. I'm a licensed certified internationally for Heal Your Life. I have been conducting various workshops for industries, organizations, as well as various NGOs. And fortunately, I could touch almost 2 lakh lives through my work till now. These are certain organizations where I have been
adding value. So today it is all about heal your life, and the title of the book, which is a bestseller book by Louis Hay, is You Can Heal Your Life, कि आप अपना यानी मैं मेरा जीवन और संवार सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ. So बहुत बार हमें लगता है जब हम हील वर्ड सुनते हैं इंग्लिश में, तो हमें लगता है कि वेदर आई एम वुंडेड, मुझे कुछ हुआ है, हर्ट हुआ है या कुछ है, इसके लिए मुझे ये वर्कशॉप या बुक पढ़ना चाहिए. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कुछ निगेटिव है इसलिए मुझे हीलिंग की जरूरत है. रादर मुझे मेरा जो बेस्ट वर्जन बनना है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा पोटेंशियल, मेरी क्षमता है, उसको मुझे जस्टिस देना है. मुझे एक फुल फ्लेज, क्योंकि बचपन से कई सारी धारणाएं, कई सारी एक दिमाग में हमारे थॉट पैटर्न रहते हैं और वो हमें मे बी ब्लॉक कर सकते हैं. सो just to understand in this simple way, if you could just turn on the camera if possible, will you just do a simple exercise? If not possible, that is also fine. Agar aap, if possible, you can turn on for 2 minutes the camera, then we can do a simple activity, or you can pay attention to what I am doing. It's a simple thing. ओके, सो दोनों पाम्स अपने हैं. मैं आपका भविष्य नहीं देखने वाला, डोंट वरी, आई डोंट नो दैट आर्ट. तो आपको ये दोनों पाम्स सिर्फ कैमरे को नहीं मारने, सिर्फ ऐसे आगे लेने हैं. बोथ ऑफ योर पाम्स गो लाइक दिस. या प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन. या लाइक दिस. यू हैव टू जस्ट कीप इट लाइक दिस, जैसे हम पीटी में करते थे. नाउ पहले देखिए, फिर आप फॉलो कीजिए. Like you have to clasp both your hands. आपको दोनों हाथों को पकड़ना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेरा थंब अप साइड पे है. जैसे अभी मेरा लेफ्ट वाला थंब अप साइड पे है. सो आपको अगेन नाउ जस्ट डू लाइक दिस एंड दोनों हाथों को एक साथ रखना है, क्लास्प करना है. एंड नाउ ऑब्जर्व कि आपका कौन सा थंब अप साइड पे है. जैसे मेरा ये लेफ्ट साइड का अप साइड पे है. ओके. Right. Okay, yes, yeah, you can keep the answer to yourself. Thank you for sharing. Yeah. Now what we will do is, हम अब क्या करेंगे, intentionally अभी हम फिर से clasp करेंगे, लेकिन before clasping we will instruct our mind कि मुझे मेरा दूसरा thumb ऊपर रखना है. जैसे मेरा left था, अश्विनी जी का right था, लावण्य का left है. So अभी purposely मैंने right thumb किया है. This is my right thumb. Just try doing it, but now the opposite has to be upside. दूसरा वाला थंब आप ऊपर आना चाहिए. ओके, ट्राई. हो गया सबका? जी हाँ, थैंक यू. ओके, दिस वाज जस्ट आइस ब्रेकर, नथिंग सीरियस अबाउट इट, क्योंकि हम थोड़े से ऐसी छोटी एक्टिविटी से कनेक्ट हो सकते हैं टू द कॉन्सेप्ट. अभी फिर से आपको दोनों हाथ लेने हैं और एक साथ फास्ट क्लास्प करने हैं. जस्ट क्लास्प इट, डोंट थिंक, जस्ट क्लास्प. जस्ट आपको होल्ड करने हैं. और अभी देखिए कि कौन सा थंब पहले वाला है या दूसरे वाला ऊपर है. नाउ यू कैन रिलीज एंड आंसर. अभी आप हाथ छोड़ सकते हैं. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन आंसर. या श्वेता इज सेइंग लेफ्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले वाला हमारा थंब था, वही थर्ड टाइम जो हम करते हैं वही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस. Why I'm sharing this? Because many a times we think that I must, yeah, Ashwini ji, first one. Because हमारे पैटर्न बना रहता है इतने सालों से. हम अनकॉन्शियसली जो करेंगे वही. जब भी ऐसा मैंने अभी किया तो मेरा भी पहले लेफ्ट आया, बिकॉज आई हैवंट पर्पसफुली, जब मैंने जानबूझ के मेरे माइंड को इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि मुझे राइट वाला, दूसरे वाला लाना है. वैसे ही बहुत बार हमारी लाइफ हम ऑटो पायलट मोड पे जीते. ऑटो पायलट मोड यानी उठना है, ऑफिस को जाना है, वही सोचते हैं, वही लोगों के साथ वही डायलॉग बोलते हैं, वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वही चीजें, वही एंटरटेनमेंट. नथिंग बैड अबाउट इट. लेकिन रूटीन के अलावा भी मेरे लाइफ में और मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. मैं खुद को, दूसरों को या
मेरे लाइफ को और अलग अंदाज से, अलग नजरिए से देख सकता हूँ, और ये मुझ में कैपेसिटी है मेरे लाइफ को और अलग लेवल पे लाने की। ये हम भूल जाते हैं या वी कन्वीनियंटली इग्नोर, हम एक उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सो यू कैन हील योर लाइफ, यानी कि मैं मेरे लाइफ का चार्ज कैसे लूं, मैं मेरे लाइफ का कंट्रोल कैसे लूं, और मेरी खुद की पावर को जान के मैं मेरी सिचुएशन, मेरे रिलेशनशिप, मेरे फाइनेंस, और मैं खुद को और लाइफ को और कैसे बेहतर और प्यार उससे कैसे करूं। सो दिस इज कनेक्टिंग विथ आवर सेल्स एट अ डिफरेंट लेवल. सो अगेन, thank you for your active participation. I can see much energy happening in the chat box. So that's wonderful. Because as Poonam ji said, कि energy को resonate करेंगे तो और हम we will gain a lot. Okay, so who is Louise Hay and why are we taking her so seriously and about her work? The best part I like about Louise Hay's work ये है कि उसका जो तरीका है वो खुद उसने उस पर ट्राई किया है, टेस्ट किया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस, मैं घड़ी का कुछ कमीशन लेके एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो खुद ट्राई टेस्टेड किया होता है उससे लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। वैसे ही लुइस है का जो अमेरिका से थी और 2017 में उनका शी लेफ्ट हर बॉडी, बट बिफोर दैट उनका बचपन से लेके 40 साल का तो जो जर्नी था लाइफ का वो बहुत ही चैलेंजिंग था। बचपन में एकदम छोटी उम्र में ही उनका फिजिकल मेंटल अब्यूज हुआ था उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके नेबर्स द्वारा। एज शी ग्रीव अप, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उसको उनको वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। सो ऑलवेज लोग फंसाते थे, कुछ बार जो मिला वो काम कर लिया, लेकिन ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। फॉर्चुनेटली शी गॉट मैरिड टू अ जेंटलमैन, अमेरिकन जेंटलमैन। उन्होंने उनको कुछ चीजें सिखाई, 12-15 साल का वो सफर रहा। उसके बाद दे गॉट डाइवोर्स। जितना ऊपर गई थी उससे ज्यादा वो नीचे लाइफ में गई। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, 40 साल तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा था लाइफ में, लेकिन उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया। उसमें उन्होंने साइंस ऑफ माइंड एंड मिरेकल्स ऑफ माइंड, ऐसे जो मेटाफिजिक्स या न्यूरो साइंस जैसे कॉन्सेप्ट सुने कि अगर हम अपने विचार या भावनाओं को शिफ्ट करेंगे तो अपना जीवन और बेहतरीन हो सकता है। तो उन्होंने सोचा अभी तो गंवाने के लिए कुछ है नहीं, व्हाई नॉट ट्राई, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, नेगेटिव इमोशन रिलीज करना, ऐसी सारी चीजें उन्होंने ट्राई करना शुरू की और उनको छोटे छोटे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे। लेकिन उसी दौरान थोड़े समय के बाद शी वॉज डायग्नोज्ड विथ अ टर्मिनल कैंसर। और डॉक्टर ने बहुत ही कम समय बोला कि आपके पास है, यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू लिव। लेकिन उनका तब तक इतना स्टडी उन्होंने किया था, पूरा जी जान लगा कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट का स्टडी किया और उनको ये पता चला कि इफ आई वर्क ऑन माई सेल्फ माई सिचुएशन आई कैन चेंज। सो उन्होंने वो निगेटिविटी रिलीज करना, जैसे हम फिजिकल डिटॉक्स करते हैं वैसे भी चालू किया, और उन्होंने बहुत सारे निगेटिविटी डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स शुरू किया, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो एंड अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। और 6 महीने में मिराक्युलसली हर कैंसर वाज टोटली वैनिश्ड। इवन डॉक्टर्स एक्सप्रेस किए मिराकल है, इवन इन मेडिकल साइंस लुइस है इज कंसिडर्ड एज अ मिराकल, क्योंकि उसका पूरा कैंसर। और उसके बाद यू विल नॉट बिलीव शी लिव्ड फॉर 52 इयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। और उन्होंने उस दौरान इस स्टडी किया कि हाउ आवर थॉट्स, हमारे विचार और इमोशन का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे ओवरऑल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर हम ये पैटर्न चेंज करेंगे तो हमारी लाइफ और बेहतरीन हो सकती है। और शी बिकेम द ऑथर ऑफ यू कैन हील योर लाइफ। ओपरा विनफ्री पे टॉक शो में गई और तब से उनका एकदम ही लाइफ 360 डिग्री पूरा ओवरऑल मेजर शिफ्ट हो गया। सो ये 72 कंट्रीज में तो उन्होंने जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस खुद फॉलो की, उनके बुक में और उनके वर्कशॉप में उन्होंने वो शेयर की है। तो लुइस का ये जो जर्नी है, व्हाट आर हर बेसिक टीचिंग्स एंड हाउ दे आर रिलेवेंट, हम देखते हैं।
So first and foremost teaching of Louis Hay is self love. खुद से प्यार करना, खुद से प्रेम करना. बहुत बार अब हमें लगता है अरे ये तो सेल्फ ऑब्सेशन हो गया. खुद से प्यार यानी दूसरों को इंपॉर्टेंस देना, ऐसे नहीं है क्या? And just thinking about oneself. No. What is exactly self-love? We will come to that. But before that, let me ask you some important question. आपको ये मन में आपको इसके आंसर देने हैं. So what are these question? कि क्या आपको हमेशा दिमाग में ऐसे निगेटिव सोच या डिबेटिव डायलॉग होते हैं कुछ घटना घटने से पहले? हमेशा या कभी कभी मेजॉरिटी होते हैं क्या? जस्ट आंसर इन योर माइंड. या पास्ट में कुछ हुआ है, सिचुएशन, लोग, रिलेशन, फाइनेंशियल इश्यूज, जिसके कारण हमें लगता है कि मैं फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है क्योंकि अब तक मेरे लाइफ में ऐसे ही घटनाएं घटी हैं. या आपको ऐसे लगता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज है, अगर ये लोग मुझसे नाराज है तो आई एम नॉट गुड इनफ, अगर ये लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो ही मेरा लाइफ वर्थवाइल है, अच्छा है. या हम हमेशा दूसरे के डिसीजन पे, दूसरों ने मुझे अच्छा कहा तभी मैं अच्छा हूँ. इवन ड्रेस मैंने कैसा पहना है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मेरा चॉइसेस कैसे है, डू वी सीक अदर पीपल्स अप्रूवल. और हमारे बहुत सारे वीकनेसेस होते हैं, कुछ चैलेंजेस होती है, लेकिन हम हमेशा अपने वीकनेसेस पे फोकस करते हैं या हमारे स्ट्रेंथ पे हम फोकस करते हैं. सो व्हाट इज माय पैटर्न? अगेन just answer for yourself. You need not answer openly because as we respect your personal space, so you can just answer, just be honest with yourself and just take a look. We are not being critical to ourselves, rather we are trying to have a brief self introspection. हम थोड़ा आत्म परीक्षण कर रहे हैं कि सेल्फ लव के स्केल पे, 110 के स्केल पे मैं अभी इन प्रश्नों के आंसर में वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ पे मेरा पोजीशन है. Okay, thank you, Lavanya ji, for this sharing and honest, open sharing. So on certain terms, you are very strong. That's good enough. That's wonderful. कि कुछ चीजों पे, yeah, Sandeep ji, you would like to share something? Yeah, Sandeep ji, you have raised your hand. Have raised your hand and you're on mute. If you want to share, kindly unmute and share. Yeah, please unmute and you can share. Okay, you can share later also. That's perfectly fine. So there could be, because this is, पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वेयर माय पैटर्न्स आर, कौन से मेरे पैटर्न है जो मुझे रोक रहे हैं. और इसके लिए हम छोटा सा एक अवेयरनेस एक्टिविटी लेंगे वेयर वी कैन होपफुली कनेक्ट कि कौन से मेरे पैटर्न मुझे ब्लॉक करते हैं या ब्रिंगिंग इट टू अवेयरनेस. सो आई वुड रिक्वेस्ट जहां पे भी आप है, इफ पॉसिबल प्लीज सिट एट अ कंफर्टेबल प्लेस जहां पे आप थोड़ा पीसफुल ऐसी जगह पे आप बैठ सकते हैं. एंड यू कैन डू दिस स्मॉल 2 minutes awareness activity with us. Yes, you are ready? We'll do this. Okay, Sandeep ji, thank you for sharing in chat box. And that's a wonderful self confidence or self esteem you have, that you're not dependent always on other people's approval. That's wonderful. Okay, so छोटा सा हम activity करेंगे. Please keep yourself at a very relaxing posture, and here we go. So just for a while, you can close your eyes. आप आंखें बंद कर सकते हैं. And slowly breathe in. Slowly breathe out. Be at ease. जहां पे भी है, अब हम एक अच्छा सुकून और शांति, पीस का अनुभव कर रहे हैं. Slowly breathe in.
Allow your body to relax. Please close your eyes. Slowly breathe in, slowly breathe out. As you breathe in, जब हम गहरी सांस अंदर ले रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पूरे विश्व का जो समृद्धि है, आनंद है, हैप्पीनेस है, वो हमारे मन और शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो भी हमें हमारे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के बीच में ब्लॉक कर रहा है, उसे हम लेट गो कर रहे हैं। और मन ही मन में हम खुद को रिलैक्स ऐसा गाइड कर रहे हैं, एंड वी आर फीलिंग रिलैक्स्ड। सर से लेकर पैर तक, till our feet, feel a wave of relaxation passing from your top to bottom, completely soothing and relaxing your existence. संपूर्ण शरीर को ये रिलैक्सेशन की वेव है, हमारे बॉडी को रिलैक्स कर रही है। Just feel at ease. You are doing a wonderful thing for yourself. And now visualize any normal day of your life, of your routine day, normal weekday जो हमारा रहता है, except weekend. And now visualize that you have just got up from the bed. अभी अभी हम नींद से जग रहे हैं, या just getting up. And now observe without खुद को कुछ भी क्रिटिसाइज न करते हुए, खुद को डाउट न करते हुए, जैसे सीसीटीवी ऑब्जर्व करता है, वैसे ही हम थर्ड पर्सन के भूमिका से खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स कमिंग इन माय माइंड। जब मैं उठता हूँ, उठती हूँ, तो मेरे पहले विचार मेरे मन में पॉजिटिव रहते हैं, न्यूट्रल या रूटीन वाले रहते हैं, या टेंशन वाले, स्ट्रेस वाले रहते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, डोंट गेट इनटू दैट रूटीन, बट ऑब्जर्व। अगेन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं कि जब मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रही हूँ, व्हाट आर माय टिपिकल थॉट्स। अरे बाप रे, कितने काम बाकी है, कितने प्रोजेक्ट्स बाकी है, पेंडिंग काम है, टेंशन है, या मुझे और एक अच्छा दिन मिला है जिसकी शुरुआत मैं पॉजिटिवली कर सकता हूँ, एंड आई कैन क्रिएट अ न्यू रियलिटी। या रूटीन के नहीं, अभी पहुंचना है ऑफिस, टाइम कम है, whatever the things, just observe. Don't again खुद को कहीं भी हम कम या inferior नहीं समझ रहे, just we are observing like a third person. Now we move ahead, and while we are going to work or starting our day with our routine, जब हम काम को जा रहे हैं, ऑफिस हो, बिजनेस हो, या एज अ होम मेकर हम अपने कामकाज शुरू कर रहे हैं, तब हमारे थॉट्स कैसे हैं कि अरे मुझे काम अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं किसकी जिंदगी जी रहा हूँ, या यू आर फीलिंग रूटीन, ज्यादा कुछ पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स हैं, या वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरे स्किल और टैलेंट को मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आई कैन क्रिएट माय न्यू फ्यूचर। एंड नाउ as you are working on your day, in the middle of the day, जैसे दिन के बीचों बीच, जस्ट हम पॉज करके, जैसे रिमोट को हम पॉज करते हैं, हमारे रूटीन को थोड़ा देर हमने पॉज किया है, एंड वी आर आस्किंग, हम खुद को प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी मेरे विचार क्या है, ये मेरा जीवन और अच्छा समृद्धि की तरफ ले जाने वाले विचार है, क्या ये विचार मेरे जीवन के लिए अर्थपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, या छोटे चीजों को मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, या मैं कॉन्शियस ही नहीं हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, एक रोबो की तरह मैं लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं
खुद के जीवन का जिम्मा संभाल के आगे जा रहा हूँ। जस्ट आस्क योरसेल्फ अगेन लाइक अ थर्ड पर्सन। और अभी शाम का समय है, ऑफिस, बिजनेस या काम की चीजें वाइंड अप कर रहे हैं और घर जा रहे हैं या अपना पर्सनल टाइम में जा रहे हैं। सो व्हाट आर अगेन माय टिपिकल थॉट्स कि ऑफिस का टेंशन हम घर ले जा रहे हैं या घर का टेंशन पहले ही हम इनवाइट कर रहे हैं। हाउ आई एम ऑपरेटिंग। छोटी छोटी चीजों में हम ट्रैफिक में डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ऐसे गाड़ी क्यों चला रहा है, इतना भी समझता नहीं है क्या। या वी आर एट पीस एंड कॉन्फिडेंट कि यस आई हैव डन माय बेस्ट एंड लेट मी कनेक्ट टू माई सेल्फ। नाउ लेट अस मूव अहेड इन आवर डे। और शाम के समय जब वी आर स्पेंडिंग अ फैमिली टाइम या फ्रेंड टाइम या पर्सनल टाइम, व्हाट आर माय टिपिकल थॉट्स इन एनी गिवन नॉर्मल डे। कि आउट ऑफ कंट्रोल लगता है या इन कंट्रोल लगता है या ज्यादा कुछ ऐसे फीलिंग नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व विदाउट अगेन गेटिंग इनटू द सिचुएशन कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। या जस्ट ऑब्जर्विंग। एंड नाउ विल कंक्लूड आवर डे। एज वी गो टू द बेड, हम सोने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर वी स्लीप, सोने से पहले मुझे क्या विचार आ रहे हैं। वी आर जस्ट हिटिंग द बेड कि बस कभी एक बार सो जाऊंगा, या बहुत सारा टेंशन है, बाप रे कल के दिन को मुझे ये करना है, ये वीक में ये करना है, हरी वरी सॉरी ये साइकिल में है, ऑलवेज हरी फास्ट, चिंता कर रहे हैं। या वी आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड कि आज मुझे एक नया दिन नए तरीके से आई कुड लिव दैट। सो जस्ट ऑब्जर्व एंड नाउ again slowly breathe in, slowly breathe out. Bring your awareness to the present moment. Wherever you are sitting, just bring yourself to wherever you are and take a deep breath. Slowly breathe out, and whenever you are ready, you can open your eyes. Yeah, thank you for your wonderful participation. I hope you could go through the whole journey of our routine. So now I would like to request you can unmute or write in the chat box कि how was the experience specifically in regards to कि ये दिन के schedule में starting to end day के, could you find any place where you were not in sync with your thoughts or you were not, आप अपने आप से connected नहीं थे, उधर लग रहा था कि ये थॉट्स मुझे ले जा रहे हैं, दे आर लाइक मुझे वो कहीं घुमा रहे हैं और मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, एंड आई डोंट फील कनेक्टेड, or you felt at control. Yeah, Sandeep ji, thank you for your appreciation. Yeah, I would appreciate if you could share कि कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस। ये अवेयरनेस एक्सपीरियंस है, हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है, लेकिन बहुत बार हम रूटीन में इतने उलझ जाते हैं कि हम। Yeah, thank you Shilpa ji for that wonderful reply. I'm so proud of you कि you feel at control. You don't allow the situations and people to control or govern you. बहुत अच्छी बात। So there are times where we give control. Yeah, Poonam ji would like to share. Please feel free. So this time my experience is very different. I have done this exercise. Yeah, your voice is little breaking. Yeah. Yeah, this time this experience is very different for me. So Okay. remember, first time I have done this exercise on 2nd April when we launched the first webinar for the same city. Right. And my response to your this activity was, I'm not even aware with which thought I get up. I'm so much into rush and running hodgepodge situation. So I'm not even aware what sort of thoughts come into my mind. But when today again I did this activity just now, I could see the shift.
So after that, 2nd April, every day I get up with the affirmations before I open my eyes, and my day start with the affirmation. And I could see, that that rush and hodgepodge thing has reduced. I won't say it's completely gone, but much better. ते मला दे, मी तोडते ते का हे केलेले ते. Yes, नीलम, काय तोडातोड झालीये? हो सॉरी. No problem. Okay. Yeah. So काय तोडायचंय काय जोडायचंय हे पण आयुष्यात महत्वाचं आहे. So it's not that we are perfect, but we can become our better version. बहुत बार हम खुद पे जाती करते हैं कि we expect too much and बहुत बार चीजें हाथ से छूट रही है, ऐसे होता है. Then again, Louis Hay का path है, it's very gentle on ourselves, but it works phenomenally well. बहुत बार when we become very hard on ourselves, results are short-lived. Yet when we love ourselves, when we become our own support system, then results are long-term. So let's move ahead. Thank you for your wonderful sharing, Poonam ji, and everybody had certain experience, I believe. So थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे मेरे डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी जस्ट डोंट वांट दिस सेशन टू बी जस्ट इनफॉर्मल और इंफॉर्मेशनल. सो लुइस है के कुछ कॉन्सेप्ट में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर. वी ऑल नो दिस कि हर जो कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, सुने हैं बचपन से भी, हमारे कल्चर में पार्ट ऑफ आवर कल्चर की. आपण म्हणतो ना संध्याकाळी या गोष्टी कराव्या, निगेटिव्ह बोलू नाही, लाइक शाम के समय अच्छी चीजें बोलो, कुछ निगेटिव मत बोलो, शुभ बोलो. सो दिस थिंग्स आर इन आवर कल्चर. यट हमारे फैमिली के कुछ पैटर्न रहते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग के कुछ पैटर्न रहते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो थॉट और इमोशनल एक्सपीरियंस महसूस करते हैं उसके हमारे बिलीफ हो जाते हैं. सो व्हाट इज द बिलीफ? जैसे मैं आपको पूछूं कि चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आई नो यू आर ऑल सेंसिबल एंड मैच्योर एंड thoroughly gentlemen people, like, लेकिन हमारा पहला आंसर क्या है? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है. लेकिन मान लो एक फुटपाथ पे लड़का है और जिसके पिताजी पॉकेट मार है, और लाइक पिक पॉकेट उनका बिजनेस ही, यानी उनका ऑक्यूपेशन है, बिकॉज दे फील दे डोंट हैव अदर ऑप्शन. और वो देखता है कि हमेशा पिताजी लोगों के पॉकेट चोरते हैं, यस, वैलेट चोरते हैं, एंड देन दैट्स हाउ दे अर्न. और मान लो वो बच्चा पहली बार ट्राई करता है एंड ही बिकम सक्सेसफुल, ही स्टील्स दैट वॉलेट एंड ही गिव्स दैट, वो पॉकेट और पैसे पिताजी को देता है, और पिताजी बोलते हैं अरे बहुत अच्छे, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, और अच्छी कमाई करो. एंड ही गिव्स 500 और 2000 रुपए उस पॉकेट में से. फॉर दैट चाइल्ड, उसके लिए बिलीफ क्या होगा कि चोरी करना अच्छा है या बुरा है? बिकॉज फॉर हिम 2000 रुपीज कैन बी his dream things, his dream objects, and he has got experience and he has got strong emotional strong experience. जब होते हैं कनेक्ट, तब हमारे बहुत बार बिलीफ्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड वी हैव बिलीफ्स फॉर एवरीथिंग. हमारे खुद के बारे में बिलीफ है, मैं दिखने में कैसा हूँ, एकेडमिक्स में कैसा हूँ, बिजनेस में कैसा हूँ, पैसे में कैसा हूँ, रिलेशन में कैसे हूँ, मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कैसा हूँ, मेरा घर का परवरिश कैसे हुआ है. वी हैव सो मेनी बिलीव्स अबाउट आवरसेल्फ एंड अबाउट आवर लाइफ. Yet these are not our own beliefs many times. बहुत बार जो हमारे ये पैटर्न्स होते हैं या बिलीफ्स होते हैं, ये हमारे खुद के भी नहीं होते. ये हमने कहाँ से तो पिकअप किए होते हैं बचपन में, जब हम ग्रो होते हैं, टीचर से होंगे, मीडिया से होंगे, न्यूज़पेपर या हो, अलग अलग चीजों से, जहाँ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में हम पढ़े हुए हैं. So there is also a lot of psychological, psychophysical impact on what our beliefs are. लेकिन हर बिलीफ को हम निगेट नहीं कर सकते. लेकिन नाउ इन दिस मैच्योर एज वी कैन चूज आवर बिलीफ. जैसे हम अपने कपड़े चूज कर सकते हैं, हम हमारे
फूड सिलेक्ट करते हैं। और बिलीफ चेंज करने का बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव एंड पावरफुल मेथड लुइसे ने प्रोपोगेट किया है, वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशन इज रिट्रेनिंग आवर माइंड, रिट्रेनिंग आवर सिस्टम, सबकॉन्शियस पावर की कैसे मुझे सोचना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्कूल हो या कॉलेज में देयर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट स्पेसिफिकली टॉट कि हमें थॉट थिंकिंग कैसा करना है, इमोशंस को रिलीज कैसे करना है। हमेशा जब हम पूछते हैं, जैसे मैं आपको पूछूं टिपिकल क्वेश्चन ऑफ ग्रीटिंग, हाउ आर यू, सो नॉर्मली व्हाट इज आवर आंसर? फॉर्मली हम क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम फिनोमिनल, यस आई एम फाइन। लेकिन क्या हमेशा हम फाइन रहते हैं, या क्या हमेशा हम शेयर कर पाते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद इन मी, इन माय रिलेशन, इन माय पर्सनल लाइफ, इन माय प्रोफेशनल लाइफ? बट और फेसबुक सोशल मीडिया पे हम हमेशा वही पोर्ट्रे करते हैं विच इज ओनली द ब्राइट, और जो बोलते हैं ना जो सोशली प्रेजेंटेबल है वही हम we put or share. But there is another side which we try to ignore, hide or camouflage. जो हम दूसरी साइड है उसे थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी ऐसा एक थोड़ा सा लेयर देते हैं कि नहीं चलेगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा। हमें कन्फ्रंट भी करना चाहिए कुछ पैटर्न से, और कुछ चीजों से आगे बढ़ना है, कुछ चीजों से लेट गो करना है। सो व्हाट इज अफर्मेशन? अफर्मेशन लुइस वुड से कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, इन अ वे इट इज अफर्मेशन। और मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हम बहुत सारी रूटीन में चीजें बोलते हैं। दो बिजनेसमैन एक साथ आते हैं, बोलते हैं धंधा नहीं हो रहा है, वसूली नहीं हो रहा है, इवन अच्छा चल रहा हो तो भी वो पैटर्न हुआ होता है कि नहीं कैसा मेरा लाइफ ऐसा है। yet there can be a positive way to share that. So न्यूरोसाइंस ऐसा बोलता है कि जो थॉट हम 300 बार हमेशा सोचते हैं डेली, दैट बिकम्स हमारा पैटर्न, मेंटल पैटर्न। जैसे हम देखते हैं गांव में खेड्यामध्ये जसं पायवाट म्हणतात मराठीला, पगडंडी, वैसे जो थॉट हम सोचते हैं 300 टाइम्स और मोर एवरी डे, तो दैट बिकम्स आवर न्यूरो पाथवे, हमारे पैटर्न हो जाता है। एंड ब्रेन थिंक्स दैट दिस इज द सुटेबल पैटर्न फॉर दिस पर्सन, लाइक दैट इज वी। लेकिन बाय गॉड और नेचर्स पावर वी आर गिवन द एबिलिटी टू शिफ्ट दैट पैटर्न। जैसे हमने वो देखा कि वी कैन शिफ्ट आवर थंब कॉन्शियसली, वैसे ही हम ये 300 टाइम्स अपना पैटर्न सोचने का। जैसे टिपिकल निगेटिव पैटर्न्स, इट्स नॉट दैट कि हमेशा हम निगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन कुछ निगेटिव पैटर्न्स हमारी जिंदगी को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं या आगे जाने से रोकते हैं। टिपिकल ऐसे कौन से पैटर्न होंगे हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस या अलग अलग चीजों में, कि शायद ऐसे हो सकता है कि हाँ हमेशा साल में 3-4 बार तो ये डिसीज या ये बुखार तो मुझे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, या मुझे फाइनेंस हैंडल नहीं करने आता, या मुझे रिलेशनशिप अच्छी तरीके से निभाना नहीं आता, आई कैन नॉट हैंडल और मैनेज पीपल वेल। मेरी हेल्थ में हमेशा कुछ तो होता है, या मुझे कुछ तो होगा। हम गूगल में सर्च करते हैं और खुद को डराते हैं। कुछ चीज हमने खुद से अच्छी नहीं की लोगों के बारे में, या ये तो हम खुद को बहुत कोसते हैं, डांटते हैं। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स, नॉट ऑल द पैटर्न्स, आई वोंट से कि हम इतने भी निगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ निगेटिव पैटर्न्स है जो हमें लाइफ में ब्लॉक करते हैं। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि किधर प्रॉब्लम है, सो हियर वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि किधर पैटर्न्स है जो मुझे अलाउ नहीं कर रहा लाइफ को फुल्ली ब्लॉसम होने में, खुद और उसको अच्छे बेहतरीन बनाने में। सो ये पैटर्न को हम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, और इससे क्या होगा, किधर मुझे एनर्जी डालनी है वो पता चलेगा। बिकॉज वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज ऐसे बोलते हैं, सो वी नीड टू नो। और एक लुइसे का बहुत बड़ा, आई वुड से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बाय लुइसे इज हाउ आवर थॉट्स एंड इमोशंस are connected and they cause diseases. She would always say कि 4 से 5 इमोशन है जो अगर हम बहुत स्टोर करेंगे और उसे रिलीज नहीं करेंगे तो हमें डिसीजेस हो सकते हैं। उसमें है फियर, एंगर, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड रिजेंटमेंट। गुस्सा करना खुद पे या दूसरों पे, खुद को क्रिटिसाइज करना या दूसरों को क्रिटिसाइज करना, डरे डरे रहना खुद के बारे में या लाइफ के बारे में, और रिजेंटमेंट कि हमेशा ऐसे
सिकुड़ के रहना है, छोटी छोटी चीजों पे पिकअप करना. So why these things cause diseases? Because word itself suggests dis-ease. Ease में नहीं है. क्या ease में नहीं है? कुछ तो ease में नहीं है. Advantage, disadvantage, merit, demerit, जैसे बोलते हैं वैसे ही ease और disease. ease के अलावा जब हम अपने लाइफ के फ्लो में at a ease नहीं है तो disease फॉर्म हो सकते हैं. These are probable causes. हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उसके कुछ फिजियोलॉजिकल या पैटर्न नहीं रहेंगे. डेफिनेटली कुछ चीजें हेरिडेटरी हो सकती है, कुछ चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकती है. वैसे ही जो सोच हम हमेशा सोचते हैं उसका पैटर्न हो जाता है और बॉडी हमारी इमोशन स्टोर करती है. बॉडी इज अ डिवाइस, ये शरीर एक डिवाइस है, वो हमें इंडिकेट करता है. जैसे कार का डैशबोर्ड दिखाता है कि फ्यूल कम है या आजकल तो सीट बेल्ट पहना या नहीं है, वो इंडिकेट करता है. अगर हम उसे इग्नोर करेंगे सो बैटरी कम है ये है, तो हम वी विल एंड अप इन सम ट्रबल. वैसे ही व्हाट एवर हैपनिंग इन आवर सिस्टम, हमारे मन में, हमारे अंदर जो हो रहा है उसे बॉडी शो अप कर रही है. और जैसे लुइस है का बुक पढ़ेंगे यू कैन हील योर लाइफ, तो उसके बीचों बीच लगभग एक 8-10 पेजेस का चार्ट उन्होंने बनाया है और उस पर उन्होंने खुद ढेर सारा रिसर्च किया है. उनका सालों का एक्सपीरियंस और काउंसलिंग और येल यूनिवर्सिटी के साथ भी रिसर्च करके उन्होंने वो चार्ट बनाया था कि हाउ देयर आर मेटाफिजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक कॉजेस टू आवर फिजिकल डिसऑर्डर्स. जैसे अभी हम सभी में जा नहीं सकते, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमेशा मेरा पीठ दर्द है, बैक पेन है, तो शी सेज कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा. नोबडी इज बॅकिंग मी. माझ्या पाठीशी कोणी नाही आहे. मराठीत पण आपण तसं म्हणतो की मेरे नोबडी इज बॅकिंग मी. सो हमें बैक पेन हो सकता है. व्हेन आई फील कि मेरे शोल्डर्स में पेन ज्यादा है, इसका एक कारण हो सकता है कि मुझे मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ है. हम बोलते मेरे शोल्डर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई एम शोल्डरिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट व्हेन वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बर्डन, नॉट एज अ अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज, तब हमारे कंधे ज्यादा शो अप करेंगे. जब हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस होगा तो सिरदर्द ज्यादा महसूस हो सकता है. जब हम अपना ओपिनियन ज्यादा नहीं दे रहे, खुद के वॉइस को, वॉइस यानी नॉट जस्ट एक्सटर्नल वॉइस, लेकिन खुद का मत, खुद का ओपिनियन हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, हम सप्रेस कर रहे हैं, तो थ्रोट के या थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं. हमेशा डर डर के रह रहे हो, तो बचपन में हमेशा पेट दर्द क्यों होता था? क्योंकि हम स्कूल में जाने से, टीचर से डरते, तो पेट में दर्द हम महसूस करते थे. तो इवन इन अडल्ट स्टेज जब हम अनसर्टेनिटी, फियर, इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो स्टमक पेन हो सकता है. हमेशा फाइनेंशियल चिंता रहेगी तो लोअर बैक पेन हो सकता है. जब हम फ्लेक्सिबिलिटी, जो चीजें या चेंज हो रहा है उसके हिसाब से खुद को अडाप्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो हमारे बॉडी के फ्लेक्सिबल पार्ट जैसे एल्बो है, नीज है, या लुइस है को जब वो इनिशियल फेज में शी हैड अ सीवियर नेक पेन, क्योंकि इतने बुरे लोग और हालात से वो गुजरी थी कि उनको लग रहा था कि नोबडी इज सपोर्टिंग मी, मैं किसी का नहीं सुनूंगी, मुझे किसका नहीं सुनना है. एंड दैट कॉज्ड हर नेक पेन. एंड व्हेन शी रिलीज दैट पैटर्न, उनका नेक पेन भी चला गया. तो ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना है या हमको खुद को ही डॉक्टर बनना है, लेकिन आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि कैन वी इन सम वे सी आवर पैटर्न. और बहुत सारे मेरे भी खुद के वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने, या 72 कंट्रीज में 1980 से काम चालू है, हजारों लोगों ने अनुभव किया है जब उन्होंने मेंटल पैटर्न शिफ्ट किया, उनके फिजिकल डिसीजेस आइदर कम हो गए या पूरे चले गए हैं. इनफैक्ट लुइस है जब वर्कशॉप लेती थी, कई लोगों ने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है कि उनके बॉडी में कई बार कुछ क्लॉट्स रहते थे, वो डिसॉल्व हुए थे बिकॉज दे फॉरगेव, दे रिलीज्ड. ऐसे मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में हुआ है. अगेन डिस्क्लेमर है कि हमें सिर्फ एक्सट्रीमली नहीं लेना है, एक चीज को बैलेंस करना है जो भी हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन इतना कनेक्शन है बॉडी और माइंड का, और ये पैटर्न हम रिलीज कर सकते हैं. आई वुड डेफिनेटली स्ट्रांगली रिकमेंड यू रीड दिस You Can Heal Your Life book, which is available in 23 languages. At the same time, you can also watch the movie
इन हिंदी और इंग्लिश यूट्यूब पे है, इफ यू सर्च यू कैन हील योर लाइफ मूवी, उसमें लुइस है का डॉक्यूमेंट्री का मूवी है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड थैंक मी फॉर दैट. सो दैट्स अ wonderful suggestion from my end. Another is we can choose our thoughts, we can choose our emotion. Energy in motion bolte. Energy cannot be destroyed, but it can be shifted or transformed. And we have the power to choose our emotions. क्योंकि जब हम people या situation को, लोगों या situation को, हालात को power देते हैं, तो we feel कि हाँ इन लोगों के कारण मैं उदास हूँ, इन situation के कारण मैं दुखी हूँ, इन सिचुएशन के कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. बट व्हेन वी चूज, इमोशन शिफ्ट होने के कारण फिजियोलॉजी शिफ्ट होती है, शरीर में कुछ चेंज करने से इमोशन दे आर कनेक्टेड. सो बहुत बार हम बहुत स्टोर कर लेते हैं इमोशन, इतना स्टोर कर लेते हैं कि वो ओवर पावर होने लगता है और पावर आउट होने लगता है. तो इसलिए कभी कभी हम बिना चाहते हुए भी हम कुछ बोल देते हैं which hurts us, which hurt other person, because we feel कि अरे हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा. लेकिन can I choose better emotions? Is it making me happy? Is it making me feel empowered? क्या इन इमोशन से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, पावरफुल महसूस हो रहा है, या विक्टिम महसूस हो रहा है? ये हमें सोचना है. और जैसे हमने कोविड में पाया कि हमने वैक्सीन लिया, हमने डोज लिया, एंड देन वी फील कि अभी मुझे आई कैन डील विद द सिचुएशन, यट स्टिल वी टेक केयर कि हमें 2 गज दूरी. वैसे ही देर आर पीपल और सिचुएशन, स्पेशली पीपल इन आवर लाइफ, एटलीस्ट 1-2 लोग तो होते ही हैं, घर में हो या ऑफिस में हो या एक्सटर्नल इसमें, कि हमें लगता है कि ये टॉक्सिक रिलेशन है, ये कुछ चीजें में मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है. लेकिन हमें भी अपना माइंडसेट की एनर्जी कैसे शिफ्ट करे, so that जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं, अफर्मेशंस के 2 तरीके हैं कि एक तो हमें चीजें अट्रैक्ट करने के लिए हम अफर्मेशन करते हैं, या कुछ निगेटिविटी रिलीज करने के लिए. लुइस है बोलती है जब ये पाथ फॉलो करते हैं सेल्फ लव का, और सेल्फ लव हमें क्यों करना है? व्हाट डू यू थिंक? एनी आंसर? क्यों हमें खुद से प्यार करना है? क्या दूसरे लोग नहीं है हमें प्यार करने के लिए? ऐसा नहीं है. वी हैव सो मेनी लविंग पीपल इन आवर लाइफ. लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि क्यों खुद से प्यार करना है? रैंडम क्वेश्चन. सेल्फ लव अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि वन लेडी मैरिड हरसेल्फ. सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेल्फ लव व्हाट इट इज. इट कैन बी पार्ट ऑफ, yet self love is a deeper thing. It's not just superficial कि सिर्फ हाँ मैं मेरी सबसे फेवरेट हूँ, जैसे जब भी मेट वाला डायलॉग बोलना, दैट इज नॉट जस्ट कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना. लेकिन सेल्फ लव है कि हमारे अस्तित्व के, हमारे एग्जिस्टेंस के 4 स्तर है: बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट. शरीर है, मन है, भावना या हृदय है, और जो एक स्पिरिचुअल बीइंग है हम उसके, वो ऑब्जर्व कर रहा है ये सभी लेवल को. ये चारों लेवल को हीलिंग की जरूरत है. जैसे शरीर को कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मन को कुछ होता है तो हम पिंक माइंड में जाते हैं कि मुझे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पूनम जी कुछ करो. यस, सो देयर इज एक्सपर्ट फॉर एवरीबॉडी. सो हाउ वी कैन बिकम आवर सपोर्ट सिस्टम. और सेल्फ लव ये चारों चीजों पे काम करता है. जैसे हमने देखा कि बचपन में कुछ निगेटिव सेल्फ डाउटिंग इंप्रेशन हमारे मन पे है, कि हमें बोला गया कि तुम्हारा भाई अच्छा है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें ये इतने डफर कैसे हो, इतना भी तुमको कैसे नहीं समझते, इतने बड़े हो गए, इतनी छोटी छोटी ऐसी चीजें तुम कैसे कर सकते हो. यस, वंडरफुल दीपक जी, कि खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरे से प्यार कर पाएंगे. जैसे एक होटल में जैसे बेवरेजेस रखे थे, चाय था, कॉफी था, अभी गर्मी है तो कुछ ठंडी चीजें भी रखी गई थी, और अचानक वेटर आया और उसका धक्का लग गया, और जो कॉफी का टेबल था वो कॉफी के कप से कॉफी इट जस्ट नीचे गिर गई. तो क्वेश्चन पूछा गया, एक एक्सपर्ट था उसने क्वेश्चन पूछा कि क्यों कॉफी गिर गई, व्हाई डिड लाइक कॉफी स्पिल आउट ऑफ द कप. तो बहुत बार उन्होंने बोला वो जगह नहीं होगी, वेटर का ध्यान नहीं रहता था. There could be many reasons, but the expert said क्योंकि कॉफी के कप में कॉफी थी उस कप में, इसलिए कॉफी
नीचे करके। अगर उसमें चाय था तो चाय गिरता था, अगर शरबत रखा हुआ था तो इट कुड हैव बीन अनदर बेवरेज। या सो हमारे भीतर जो है, जब चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, जब इवन अपॉर्चुनिटी आते हैं, अगर फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर है तो वही बाहर आएगा। अगर प्रेम है, कंपैशन है, रिस्पेक्ट है, एप्रिसिएशन है, ग्रेटिट्यूड है, तो वो बाहर आएगा। तो व्हाट वी आर क्रिएटिंग इनसाइड will create outside. That is the basic foundation of Louise Hay's book. And it is safe to look within. She would always say कि हमें डर लगता है अंदर क्या क्या स्टोर किया है हमने, but it is okay and safe to look within. So self love का मतलब है कि खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन का स्टार लगता है ना, उसके बिना एक्सेप्ट करना, खुद को स्वीकार करना, खुद को सपोर्ट करना, खुद से फ्रेंडशिप, बिकॉज रिलेशनशिप विथ वी हैव विथ आवरसेल्व्स इज फॉरएवर। बाकी रिश्ते आएंगे जाएंगे, थोड़ा देर इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमारा खुद से खुद का नाता है वो हमेशा रहेगा। देन व्हाई डू वी वांट टू क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, व्हाई डू वी वांट टू स्केयर आवरसेल्व्स? क्यों हमें खुद को डराना है, हमें खुद की निंदा करनी है? क्या हम खुद को और लविंगली और काइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये है एक सिस्टम जिसके द्वारा हम खुद की सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। सो ये एंटीवायरस है खुद के लिए, जैसे हम कंप्यूटर में डालते हैं। और इसलिए लुईस ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया है, एंड शी वाज स्ट्रांग बिलीवर। ये काम किए बिना लुईस कभी घर से बाहर भी नहीं गई। दैट वाज हर कन्विक्शन, दैट वाज हर कमिटमेंट टू हरसेल्फ, दैट वाज मिरर वर्क, कि वो हमेशा मिरर जो एक आईना रहता है, जिसमें वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के दिखाती थी कि यस, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अभी आप बोलेंगे ये हिप्नोटिज्म है क्या, ये जादू टोना है क्या, आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो? ये कुछ जादू नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिवली। क्योंकि हमारे बचपन में या जब हम बड़े होते हुए भी, अभी भी आंखों में आंखें डालकर कुछ लोगों ने हमें कुछ निगेटिव बोला है। भले उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, वो पेरेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, कि अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप परफेक्ट शेप में नहीं है, परफेक्ट इतना पैसा नहीं, ये गाड़ी यूज नहीं करते। मीडिया ने ये चीजें बोली और हमें लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। लुई से बोलती थी कि या नीलम जी, वुड लाइक टू शेयर समथिंग और यू आर अटेंडिंग समथिंग, दैट्स फाइन। दॅट 3 लाईन्स त्या बोलतात ना मिरर मध्ये, त्या लाईन जरा तुम्ही रिपीट कराल का? Yeah, there are some fundamental affirmations Louise Hay would say to herself always. First one was कि I love and accept myself exactly as I am. हम आंखों में आंखें डाल के खुद को बोलते I love you. ये थोड़ा क्रेजी लगेगा, वियर्ड लगेगा, लेकिन हमारा खुद से ही खुद का एक डिस्कनेक्शन है, और हम बाहर वो प्रेम या ट्रस्ट या रिलेशन ढूंढ रहे हैं, बाहर भी मैनिफेस्ट होगा। जैसे आपने डियर जिंदगी मूवी में देखा होगा, दैट एक्ट्रेस, शी वाज नॉट कनेक्टेड टू हरसेल्फ, तो उसके लाइफ में नेगेटिव पैटर्न हो रहे थे, बट शाहरुख खान एज अ काउंसिलर उसने उसको खुद के भीतर झांकने को बोला। सो कुछ अफर्मेशन लुईस के है, आई ट्रस्ट लाइफ, मेरे जीवन पे भरोसा है। आई एम सेफ, बहुत बार हम पे फियर इम्पोज गई है। जब पेपर पढ़ेंगे, न्यूज पर सुनेंगे, हमेशा लगता है कि ये पूरी दुनिया कितनी इनसिक्योर है। सो हमें खुद को सपोर्ट करने के लिए आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ, आई एम लविंग एंड लवेबल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, एंड या आई ट्रस्ट लाइफ, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। मनी के अफर्मेशन से, लुईस के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, बट शी वुड ऑलवेज से माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, आई प्रॉस्पर वेर एवर आई गो। और उस समय उसमें उनके पास रोल्स रॉयस था, हे हाउस फाउंडेशन है। या थैंक यू पूनम जी फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल अफर्मेशंस ऑफ लुईस है। इवन जो 3 इडियट में जो फेमस है, ऑल इज वेल, दैट इज फ्रॉम लुईस हेज बुक। शी वुड ऑलवेज से, इन द इन्फिनिटी ऑफ द वर्ल्ड वेयर आई एम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। लुईस हमेशा बोलती थी कि जहां मैं भी मैं दुनिया में हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जैसे हमारे वैदिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है कि
सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। और when we are aligned, तब वैसे ही हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आपका ये होमवर्क है आज। भले आपके पास बहुत समय कम हो, हमारे एक ग्लोबल टीचर है, वो बोलते हैं even while brushing, even if you in your mind say for 3 months you will find a drastic change in your life, some positive things। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, कुछ निगेटिव उससे नहीं होता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जैसे हमने बोला कि बचपन में से हमारे बहुत बार कुछ चीजें हमारे, जैसे हमारे बीच में पूनम जी है और भी कुछ साइकोलॉजी के एक्सपर्ट रहेंगे, कि जो भी फॉर्मेटिव संस्कार क्षम एज में हमारे मन पे जो इम्प्रेशन होते हैं, उसका इम्पैक्ट भले हम महसूस नहीं करें लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है, और उसे कहते हैं इनर चाइल्ड। और ये इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये इनर चाइल्ड क्या है, हम 2 ही मिनट में अभी कंक्लूड करने वाले हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो तो हम देखेंगे कि इनर चाइल्ड यानी जो 3 या 5 साल का जो छोटा बच्चा, या 7 साल तक का, 307 साल का छोटे बच्चे की जरूरतें क्या होती है, इमोशनल या फिजिकल। उसे हमेशा सेफ्टी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए और केयर एंड वार्मथ चाहिए। ये हर छोटे बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे माँ नहीं दिखेगी या पेरेंट्स नहीं दिखेंगे, द चाइल्ड फील्स अनसेफ। कोई उसको घूर के देख रहे, द चाइल्ड फील्स थ्रेटन्ड। तो वैसे ही हमारे भीतर ये इनर चाइल्ड रहता है, जो बाहर की दुनिया को भी देखता रहता है। और अलग अलग तरीके से ये इनर चाइल्ड को कई बार उसको हर्ट हुआ है, या वुंड्स, कुछ जख्म उसके हुए हैं। एक रहता है गिल्ट वुंड, हमें हमेशा बोला गया है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने पूछा क्यों नहीं। तो गिल्ट यानी कुछ अपराधी भाव इम्पोज किया जाता है। तो वो इनर चाइल्ड बड़े होने पर भी वो बॉस के सामने रहेगा, पत्नी या पति के सामने रहेगा, या सोसाइटी में भी वो हमेशा सॉरी सॉरी सॉरी, डरा डरा सहमा सहमा रहेगा। और ऐसे ही लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो उसे और गिल्टी प्रतीत करे। और एक चाइल्ड का पैटर्न हो जाता है अबंडनमेंट, यानी उसको निग्लेक्ट किया हुआ है, उसको अवॉइड किया हुआ है, मराठी में दुर्लक्षित केलं गेलंय त्याला, उसे लेफ्ट आउट फील होता है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस है, अरे तू क्यों बीच में बोल रहा है, छोटा है ना, बीच में मत बोल लो। और स्कूल में भी ऐसा, घर में भी ऐसा, सोसाइटी में भी ऐसा, तो ऑफिस में भी ही फील कि मेरा कुछ इधर इम्पोर्टेंस नहीं है। सो उसे हमेशा लगता है कि लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, उसे अकेले रहने में डर लगता है, उसे लगता है कि कोई मुझे छोड़ के चलेगा। और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है कि जो लोग उसके होते हुए भी इर्द गिर्द उसे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इनर से वो होमलेस फीलिंग है जो बचपन में महसूस की। और कुछ इनर चाइल्ड के नीड होते हैं कि ट्रस्ट इशू, कि उसे हमेशा लगता है लोग मुझे हर्ट करेंगे, खुद को पे उसको ट्रस्ट नहीं रहता, और वो लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, और हमेशा इनसिक्योर लगता है, और हमेशा अनसेफ, असुरक्षित महसूस करता है। और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है लाइफ में या प्रोफेशन में, इवन सोसाइटी में, जो उसके ट्रस्ट नहीं करते या वो उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते। और है निग्लेक्टफुल, कि छोड़ नहीं पाता, खुद का लो सेल्फ स्टीम रहता है, खुद को हमेशा कोसता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझ में एक भी चीज अच्छी क्यों नहीं है। स्ट्रगल होता है उसे ना कहने में, क्योंकि उसे लगता है वो ना कहेगा तो लोग नाराज होंगे और उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह पाएंगे। या हमेशा शाय रहता है, खुद को इवन होटल में भी जाएगा तो बोलेगा नहीं आप मेरे लिए बोल लो, कोई चॉइस नहीं रहता। और हमेशा ऐसी चीजें अट्रैक्ट करता है जहां उसे और निग्लेक्ट और लेफ्ट आउट फील हो। और एक बहुत बड़ा लास्ट पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लुइस है ने जो खुद अनुभव किया, कैंसर भी वो ओवरकम कर पाई, वो है फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जब हम होल्ड करते हैं निगेटिव इमोशन को या निगेटिव सिचुएशन, या कुछ लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया है, तो हम वर्तमान में न जीते हुए वो 10-12 साल की घटनाओं को रिफ्रेश करते हैं। सो समटाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। तो कौन सी चीज से हमें छोड़नी है जो मुझे नए लाइफ की तरफ ले जाएंगी, कौन सी चीजें मुझे अंदर
मैंने स्टोर की है, वो अनुभव हो, लोग हो, टॉक्सिक लोग हो, जो लेट गो करने। और फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे के बर्ताव का सपोर्ट कर रहे हैं, कि वो कुछ भी करे और हम हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हम वो स्तर पे नहीं है और ना ही हमें होना है। फॉरगिवनेस का प्रैक्टिकल अर्थ ये है कि मुझे हैप्पीनेस चुनना है, मुझे मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और जो जो बेहतरीन चीजें है मुझे अट्रैक्ट करनी है, और जो लोग और सिचुएशन मुझे उसमें कड़वाहट लाते हैं उनको दूर करना है, और मुझे उन पे हाईलाइट नहीं करना है, मुझे मेरे लाइफ पे हाईलाइट करना है। दैट इज फॉरगिवनेस। जो भी आगे नहीं बढ़ रहा वो लेट गो करना है। जैसे बर्तन में कुछ गंदगी है और उसमें हम अच्छा चीजें डालेंगे तो गंदगी अच्छी चीजों को भी स्पॉइल करेगी। वैसे ही हम जब निगेटिव चीजें लेट गो नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, भले हम अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, उसका असर डाइल्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि हम पानी भी डाल रहे हैं और फ्यूल भी डाल रहे हैं, तो वो आग ज्यादा ब्लेजिंग फायर नहीं बनेगी। सो लेटिंग गो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज हम खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद की जिंदगी में निगेटिविटी के बदले हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ लुइस हेज वर्क, एंड एज शी वुड ऑलवेज से कि I don't fix problems, I fix my thinking and problem gets solved। बहुत बार हम सिचुएशन या लोगों को फिक्स करने का, उनको बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन that doesn't work many times। Why? Because हमने खुद को ही नहीं अपलिफ्ट किया, खुद के पैटर्न को ही शिफ्ट नहीं किया। प्रॉब्लम से हमने खुद को सॉल्यूशन माइंडसेट से अगर नहीं देखा है तो we will become part of problem। So these are certain things I wanted to share, and there are some wonderful announcements coming up through Pink Mind. But before that, Poonam ji would like to add, comment, share, or our participants would like to ask something, or we would announce this. Yeah. In fact, I prefer any reflection, any thought from the participant. अब तक हमने जो किया है, आपको कनेक्ट कर पाए, Yeah, वैल्यू दे पाए, या anything that is top of your mind, right? yeah, anything you feel which you, Or any question you have something in your mind, कुछ सवाल है, वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। yeah, anything in chat box about the session, about whatever we discussed. Please feel free. There is nothing technical about it. Whatever it's all about our. And I'm also in the journey. ऐसा नहीं है कि मैं एकदम extraordinary level पे हूँ. Yet I would definitely say कि लुइस है के वर्क के बाद मेरा लाइफ बहुत अलग लेवल पे शिफ्ट हुआ है और हो रहा है. Yeah, Neha ji, I have one curiosity that why is self-loving getting so hyped these days? Okay, thank you for this wonderful question. Why it is getting hyped? Because unfortunately many people haven't like gone in the deeper aspect of self-love. Self-love का मतलब और self-obsession. See, self-obsession is an addiction. And what is addiction? Addiction या जब हम सेल्फ ऑब्सेस होते हैं कि दूसरों के अलावा सिर्फ खुद को ही दुनिया में रहते हैं, देन दैट इज ऑब्सेशन. कि जहां भी जाओ, जब तक मैं ये वो सेल्फी सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, क्या मैंने होटल में खाया, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इज दैट ओनली एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, दैट बिकम्स द प्रायोरिटी देन व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, देन वी आर लूजिंग कनेक्शन विद आवरसेल्फ. आई पर्सनली बिलीव दैट. तो सेल्फ ऑब्सेशन अलग है और सेल्फ लव अलग है. सेल्फ लव यानी जैसे मैंने बोला कि बॉडी, हार्ट, माइंड, स्पिरिट, ये चारों चीजों में हम अलाइनमेंट देख रहे हैं, वो इंटीग्रिटी देख रहे हैं. और जो भी सेल्फ लव नहीं है, लुइस है की भाषा में सेल्फ लव है जैसे बच्चा खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है. 6 महीने का, साल का बच्चा खुद को जज नहीं करता, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करता, जो इमोशन है वो फुल्ली जीता है, लेट गो भी करता है और 300-400 बार दिन में हंसता है. वैसे we were all born with that self love and innocence. Somewhere down the line we were programmed कि I am not good enough, I am not loving. मैं ऐसा दिखूंगा
ये मेरा इतना पैकेज होगा तभी आई एम लविंग. नो, लुइस आई वुड से यू आर लविंग एंड लवेबल जस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट. जैसे हमें ब्रीदिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हार्ट पाल्पिटेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वैसे ही वी डोंट हैव टू अर्न द राइट टू बी लव्ड. We are loving and lovable. It comes naturally to a soul. It's soul's propensity to love and feel loved. So social media and yeah, as Ashwini ji is sharing, कि उसको external validation पे self love dependent नहीं है कि दूसरे लोग मुझे like करेंगे तो. That then many people जब उनको like नहीं आता या कुछ support नहीं आता, they go into self rejection. So self love is in any condition. Loving ourselves, accepting ourselves and being our best support system. So जैसे मैंने बोला कि any vacuum within, जो हमारे जीवन में जो गैप है वो हम किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस या चीज से फील करेंगे, दो दैट इज एडिक्शन. कि मुझे हाई लगने के लिए मुझे स्मोकिंग चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, या मुझे कोई सब्सटेंस चाहिए, या मुझे रील देखने चाहिए, दैट बिकम्स, या कोई व्यक्ति चाहिए, आई एम डिपेंडेंट टू मच ऑन दैट, दैट बिकम्स addiction. Never wonder our parents never had to attend such a session. Yeah, in a, Can I, yeah, related to Neha, I just add few lines. yeah, please add. या अगर मैं मेरा बचपन देखती तो मुझे लगता है लाइफ काफी सिंपल थी. मतलब 7 बजे 8 बजे खाना करो, 9-9:30 तक go to bed, spend your time with family, बच्चे खेलो. So life was very simple. अभी अगर मैं देखती हूँ तो expectations are high. ये खुद से भी, दूसरों को, हमसे भी, everything is benchmark काफी बढ़ते जा रहे हैं. पॉज हम नहीं लेते हैं, just keep running. Yeah, सोचते नहीं रुकते कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है, nothing. तो ये जो एक स्पीड आ गया है, the speed maybe due to technology, the speed due to the pollution around us, and maybe over resources, everything that impacts us, that impacts our emotion. और जितना स्ट्रेस अगर मैं सोचूं कि 10 साल पहले या 20 साल पहले होता था, उससे अभी इज वेरी कॉमन. सो मैंने एक रिसर्च पढ़ा था और उसने कहा था इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ प्रेडिक्शन कि ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन जो है इज गोइंग थ्रू अ इमोशनल हेल्थ इशू. Imagine 20% is a quite a big number. ये जो नंबर था वो कोविड के पहले, पोस्ट कोविड तो बहुत सारी चीजें, दैट्स आल्सो कंट्रीब्यूट ओवर. मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज का, रेवोल्यूशन yeah, your सारी voice. चीजों का, ये सारी चीजों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है. और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस होता है तो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अदर्स, Right. एक ट्रैक पे नहीं रहे. Then everything's come like feeling lonely, not feeling good about ourselves, lots of anger, irritation. वो खुद के लिए, सेल्फ के लिए जो स्पेस देना होता है, that is also self. Absolutely. वो नहीं कर पाते. Yeah, quality me time हो. Yeah, so that is why if you ask why people are nowadays talking about self, simple parameter है, हम कितना टाइम एक्सरसाइज के लिए देते हैं, हम कितना टाइम मेडिटेशन के लिए देते हैं, हम कितना टाइम अच्छा खाना बना के खाने के लिए देते हैं. These are some basic parameters की खुद का ख्याल रखना. And if we are not able to do that due to XYZ reason, that means somewhere we are lacking. Yeah, I think now, like, before we take more questions, we'll just share the wonderful announcement so that people can know that and they will we can anytime. Would that be fine? Yeah, so You Can Heal का internationally certified workshops है, and these are like proper, I'm a certified internationally into this, and soon we are announcing that workshop in Mumbai in coming weekend. And there are many participants from age 20 to 80, from homemaker, student to CA, doctors, and bankers to even retired people. And I would just like to share कि ये 2 दिन जो हमने चीजें देखी, अभी तो कॉन्सेप्चुअली और थोड़ी एक्सपीरियंशियल देखी, लेकिन ये खुद
लुइस है ने ये बनाया हुआ वर्कशॉप है। 40 साल का उनका खुद का जर्नी, और बुक में जो है वो 20-30% पार्ट वो वर्कशॉप में है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपीरियंशियल है। 80% इज लाइक प्रैक्टिकल थिंग, उसमें नो पीपीटी, नो ज्ञान। ज्ञान है 20% तो फंडामेंटल, लेकिन जो हमने स्टोर किया है, जैसे हम पंचकर्म में निगेटिविटी रिलीज करते हैं, सो वी डोंट हैव अ सेफ स्पेस फॉर इमोशनल रिलीज, फिजिकल जो टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज करने में। और इसके लिए भी सर्टिफाइड ट्रेनर भी प्रोवाइड दैट फैसिलिटी विद अ वेरी लिमिटेड नंबर, और जिधर लाइक माइंडेड कमिटेड पीपल कम विद अ ऑथ टू कॉन्फिडेंशियलिटी। और ग्लोबली हमारा ये अनुभव है कि परफेक्ट पीपल कम फॉर द वर्कशॉप टू सपोर्ट ईच अदर। मैंने खुद ने जब ये वर्कशॉप किया एज अ पार्टिसिपेंट, मुझे ऐसा लगा कि 15-20 किलो का जो बर्डन है मेरे दिमाग में या मन में, आई कुड रिलीज इट, क्योंकि आई हैड सम एक्सप्रेशन इश्यूज इन अर्लियर ऑफ माय, even I was in a training, still I had certain issues to express emotionally, but I could express myself in better way, और बहुत सारी मेरी छोटी मोटी चीजें भी उसका अफेक्ट अच्छा हुआ। So I would just like to share what participants say in just 1 or 2 minutes in this workshop, what benefit they have derived in the recent workshop. Let me know if it is available. Hello, I'm Deepa Manish Deshpande from Kolhapur. For last 26 years, I am working in engineering industry. During COVID, I attended a WhatsApp course by Mr. Vinay Gosavi sir, which is Love Yourself and Heal Your Life. And I was eagerly waiting. Okay, can you see this or like it's not visible? We could only hear, not a video. Just a minute, I will play it from directly. It's just a 2 minutes video. Hello, I'm the You need to do share entire. Deepa Manish Deshpande from Kolhapur. Yes, we are able to see. Last 26 years, I am working in engineering industry. During COVID, I attended a WhatsApp course by Mr. Vinay Gosavi sir, which is Love Yourself and Heal Your Life. And I was eagerly waiting for the physical course. So before 6 months, I attended this course by Vinay Gosavi sir, and I would like to share my experience. The things which I learned in the course are really fantastic. Actually, हमें पता नहीं होता है कि खुद से प्यार करना होता है. So in that course you can really learn how to love yourself. बहुत बार नेगेटिविटी मन में रहती है, we cannot express to anyone. So how to release your negativity? Affirmations क्या होते हैं? Mirror work क्या होता है? बहुत बार किसी से झगड़ा होता है, we cannot forgive them. So how to forgive and release our tension? ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम ये 2 दिन के वर्कशॉप में सीख सकते हैं. ऐसा भी लगता है कि अरे हमारे मन की बात है जो सबके सामने कैसे बताए, लेकिन लुइस के जो है उन्होंने ये वर्कशॉप इतने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, एंड सेम पीपल विद सेम माइंड they will be in your workshop. So बहुत अच्छी तरह से we can express ourselves. किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है. और विनय गोसावी सर जो है तो पर्सनली उनके आवाज में ही एक जादू है. When you hear his voice, 50% of your tensions and negativity वो चला जाता है, भाग जाता है. So I could experience, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं after attending this workshop. I regularly do practice of mirror work, affirmations, meditation, and there is drastic change in my day-to-day life. So मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वर्कशॉप जरूर करें और अपने अंदर के खुद को नए तरीके से पाए. थैंक्स अ लॉट.
Hello, I'm Deepa Manish Deshpande from Kolhapur. For last 26 years, Okay, so these are just testimonials our participants have shared. And we are announcing, Pink Mind is announcing. I'm happy to announce it. I would like Poonamji you to announce it, that what is the course and that's Sure. So today we have seen and understand his work and her philosophy. So we are offering 2 days comprehensive workshop on the same philosophy. This workshop is internationally designed by UNK Foundation and इसका फायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप पेरिस में जाओ, आप अगर दुबई जा रहे हो, जहाँ जहाँ से फाउंडेशन काम करता है वहाँ पे एग्जैक्टली वही वर्कशॉप आपका 2 दिन का जो उनका डिजाइन होगा वही इस पूनम आवाज ब्रेक होते हैं अगं. सॉरी सो मैं कह रही थी कि इससे इंटरनेशनली डिजाइन वर्कशॉप और आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री में जा रहे हो और ये 2 दिन का वर्कशॉप अगर आप अटेंड करोगे तो यही डिजाइन यही एक्टिविटी और यही इफेक्ट आपको मिलने वाला है. Louis Foundation has their own certified trainer and license holder trainer. So we are very glad and happy we have Vinay who is Louis Foundation certified trainer. तो ये 2 दिन का वर्कशॉप लेने वाला. बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं 2 दिन निकालना इज अ बिग थिंग. सुबह 9 से 6 इट्स अ नॉन रेसिडेंशियल वर्कशॉप. बट मुझे लगता है हमारी लाइफ क्रिएट करने में जैसी भी है अच्छी है, कभी भी बहुत अच्छी चीजें भी है हमारे अंदर, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें शायद परेशान करती है या हमें और भी अच्छा करना, वो सारी चीजें करने के लिए हमने शायद 30 साल 40 साल लिए. तो हम खुद के लिए 2 दिन तो दे सकते हैं उसको रिविजिट करने के लिए, समझने के लिए मुझे क्या कंटिन्यू करना है और क्या मुझे चेंज करना है. सो इट्स अ 2 day journey. इट्स इन मुंबई, सुबह गैलेक्सी जो अंदर ही तीसरा होटल वहाँ पे ये वर्कशॉप होने वाला है. इस वर्कशॉप के साथ आपको जो चीजें इंक्लूडेड है, तो एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट टू हाई टी इज इंक्लूडेड. Secondly, we will also provide you some training material for further reference. अलग से हम और एक्स्ट्रा या वैल्यू एडेड क्या कर रहे हैं. सो मेनी टाइम वी थिंक वर्कशॉप्स करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, बट वंस वी आर बैक टू अवर रैट रेस हम वो ट्रेनिंग के जो लर्निंग्स होते हैं उसको कभी कभी सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज व्हाई वी आर ऑफरिंग additional 3 month support where you will get 3 sessions of individual counseling as well as you will get the 3 group session where the Vinay sir himself will be conducting this session and guiding us on if required further tools of Louis Hay to sustain the learning or to help us to get implementation of your learning in your life. इसके अलावा हर एक की जर्नी अलग होती है. You may have your individual challenge. So that is why we are offering individual counseling, which is included in this. This fees for 2 days workshop is 15,000. We have offer a discount. अगर किसी को हम दोनों भी ये चाहते कि पैसे की वजह से कोई चीज रुके नहीं, and if someone thinks I am completely convinced with this philosophy and I really want to do it, please get in touch with us. We'll try to give you the best option जहाँ आप ये workshop attend करें. So anytime you can connect us back for further details or further queries. We would be happy to have a talk or conversation with you one. So we will be writing our phone number chat box. Can welcome that. Feel free to contact. Yeah, so please feel free to connect us if you have any doubt or you need more clarity about the workshop or about Louis's work as well. So we are there to support you. And I think this is the best gift I gave to myself, and it's not just as a part of profession, but in my journey I found that so many things can be resolved and uplifted. इतने अच्छी और सिंपल और जेंटल लविंग तरीके से हम अपने लाइफ को, बहुत बार हम सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, तो there is a beautiful way to lead our lives.
So I would be happy if you write in a chat box how was this experience for you of this webinar. This will really help us to understand how you all are feeling. Or if any suggestion, also your suggestion and feedbacks are welcome. Please feel free to write in chat box or just unmute and say. बहुत देर तक आपने हमारी आवाज सुनी है, so अभी हमें आपकी आवाज सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा. yeah, absolutely. Unmute and get share your feedback. Others can type it in the chat box. Yes, if you have any comment about the workshop, about question about the workshop, or अभी ये workshop हुआ है, you can feel free to just comment. All right. There's wonderful compliments you have shared in chat box. We are so grateful to you for this, for being present first and for giving yourself this quality time to again revisit these concepts. Thank you, everyone. Yes, Poonam ji, so should we conclude? Yeah. Thank you so much for being part of this session and taking out time for yourself. I think the Yeah. first thing that you are taking for yourself, care yourself. आप आपने अभी open mind, open engages. Absolutely. Thank you so much for being here and making this session wonderful with your participation, maybe on chat and sharing your thoughts. Thanks and take care. Yeah, thank you so much.